हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए सुनील अमलानी और ये वीडियो में हम लोग सीए इंटरमीडिएट के जनवरी 2021 अटेम्प्ट के ग्रुप 1 पेपर 1 के सजेस्टेड आंसर्स उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके सजेस्टेड आंसर्स क्या हो सकते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल आईसीएआई ने पूछा है 20 मार्क्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। Darshan Limited purchased a machine on 1416 for rupees 130 lakh. Okay, and useful life 4 years. Government grant received is 40 lakh. तो ये हो गया क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ठीक, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन इज 60 लाख रुपीज। ओके, Darshan Limited decides to treat grant as deferred income. So how they are treating government grant that they have given in the question. You are required to calculate amount of debris and grant to be recognized in P&L for the year ending 31st March 2017, 18, 19 and 2020. And Darshan Limited follows SLM for charging depreciation. So on and all, not that difficult question, right? Simply we have to calculate what? The depreciation per annum that company will charge, and second thing, how much government grant that will be recognized. ठीक है? So here the solution that we have made for you, आपको इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से if you want। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, डिप्रिसिएशन के लिए असेट्स का वैल्यू 130, 60 लाख सैल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, SLM के हिसाब से हम डेप्री प्रोवाइड करेंगे तो एवरी ईयर डेप्री विल रिमेन सेम, दैट इज 17.5 लाख राइट पर एनम। देन government grant, how do we recognize? So same way as it is in a straight line method, right? We'll defer government grant in equal proportion. So 40 lakh divided by 4, every year we will recognize in our profit and loss account 10 lakh. So 17.5 lakh debit as depreciation, 10 lakh credit as recognition of government grant, or you can say net effect in P&L will be what? 7.5 lakh. Clear? Not that difficult. For 5 mark I can say this was pretty easy question. Okay, next one. B, they have asked on AS 13 reclassification of investment, right? So हमको reclassification से क्या पता चलता है कि भाई या तो होगा कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट में या करंट को हम लॉन्ग टर्म के लिए रिक्लासिफाई कर रहे हैं, राइट? तो कुणाल सिक्योरिटीज वांट्स टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13. State the values at which investments were to be reclassified in the following cases. तो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10.5 इज टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। लॉन्ग टर्म को हम क्या करेंगे? करंट में। व्हाट इज द रूल? कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर। ओके, कंपनी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू 9 लाख रुपीज, सो दिस इज द कैरिंग वैल्यू, दिस इज कॉस्ट to be recognized in permanent to be recognized a permanent decline. The fair value on the date of reclassification is irrelevant, so the 9 or 10.5 obviously it should be recognized as 9 lakh rupees, right? तो see यहाँ पे रूल दे दिया है आपको कि long term if reclassified then transfer should be made as lower of cost and carrying amount, where if investments are reclassified from current to long term then lower of cost and fair value. ठीक है, दूसरा क्या पूछा है? वापस लॉन्ग टर्म ही पूछा है। ओके, कॉस्ट 14 लाख reclassified as current. The fair value on the date of reclassification is 16, whereas the book value is 14. Fair value again it's not relevant in my case. Why? Because 14 lakh rupees long term investment cost and book value is also 14, so it's 14 only, right? Here 14 lakh, the previous one 9 lakh. Then what? Current investment in company C costing 12 lakh is to be reclassified as long term. Then cost of fair market value whichever is lower as on the rate of transfer 12 lakh, and this is 12 lakh. Okay, the market value on the date of reclassification is 13.5, so we will reclassify at 12. See, right? It should be reclassified as 12. Then current investment in company D costing 18 lakh is to be reclassified as long term and the market value is 16.5. Then if you are classifying current to long term, then market value if it is lower, right? Then we take 16.5.
again I can say not that difficult, right? You write this theory कि उसका बेसिस क्या होता है, लॉन्ग टर्म टू करंट, करंट टू लॉन्ग टर्म, एंड आप उसको रिक्लासीफाई कर दो. आई थिंक दिस इज अगेन प्रिटी इजी क्वेश्चन. ओके, सी Mr. Jatin gives the following information relating to his item forming part of inventory. Accounting standard 2 का क्वेश्चन पूछा गया है. His enterprise produces product P using raw material X. Okay, 900 units of raw material X purchased at 100 per unit. Replacement cost of raw material is 80. अब raw material का वैल्यूएशन कैसे होता है भाई? Cost or replacement value, whichever is lower, right? So here basic theory is given, right? And 900 units, correct, should be valued at 80 rupees. So 900 into 80, 72, right, is the amount at that we have to value raw material X. दूसरा क्या पूछा है भाई? 400 units partly finished, WIP, work in progress, okay, of product P. Cost incurred till date is 245. Okay, these units can be finished next year by incurring additional cost. Estimated further completion cost दिया हुआ है. तो WIP कैसे होगा भाई? कि cost or net realizable value whichever is lower. What do you mean by NRV? NRV means the estimated selling price less estimated selling cost less estimated further completion cost. तो यहाँ पे हमको वो एक information निकालना पड़ेगा. 800 units of finished goods P, total cost incurred 295. Okay, so this is already in finished goods. Okay, I mean finished condition, right? Expected selling price is 280 per unit, subject to a payment of 5% brokerage on selling price. So this is nothing but a estimated selling cost. क्या करना पड़ेगा? Minus करना पड़ेगा, right? Now for WIP, can I say it will be 280 minus 5% minus 50 rupees? Right, 280 minus 5% minus 50 rupees. So here, if we discuss the answer, 280 into 95% or minus 5%, it's one and the same thing. Minus 50, that will give you 216. ये 216, 216 is what? 216 is nothing but it is the NRV of inventory, WIP. पर उसका cost कितना है भाई साहब? 245. Cost NRV, whichever is lower. So 216. So partly finished goods, WIP, 400 units, 216. So that should be valued at 88,400. अब बारी आती है आपके फिनिश गुड्स की. तो फिनिश गुड्स में क्या है भाई? 295 पर यूनिट इज द कॉस्ट. अब जाहिर सी बात है, वैसे भी सेलिंग प्राइस कम ही है ना? एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट 280 माइनस 5% और यू कैन से मल्टीप्लाई बाय 95%, वन एंड द सेम थिंग. उसी प्राइस पे ये वैल्यू होगा, है ना? क्योंकि आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV is lesser than cost price. Okay, so here 266 directly, right? So finished goods 800, 266, 212, 800. Total value of inventory should be what? 371, 200, right? चलो next question देख लेते हैं. Explain briefly the accounting treatment needed in the following cases as per AS 11. Okay, AS 11 का question. Debtor includes due from Mr. S, rupees 9 lakh, recorded at a prevailing exchange rate on the date of sales. Transaction recorded at $1 is equal to 72 rupees. वो तब record किया गया था. Then at the end, 31st March 2020, the value of $1 is how much? 73.5. और अप्रैल 19 में कितना था? 72.5. तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे एज पर AS 11? देखो 9 लाख रुपीज डिवाइड बाई 72. जब हमने किया था सेल तब कितना था? 72. इसका मतलब कितना डॉलर था? $12,500 का रेट था. ठीक है, 9 लाख रुपीज. अब यहां पे गेन कितना होगा? 72 पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ था जो पैसा लेना है, राइट, US डॉलर में. अब वो 73.5 हो गया, मतलब हमको ऑन एन एवरेज 1.5 रुपीज पर डॉलर फायदा हो रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय 12,500. तो मेरा यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस जो गेन आएगा 18,750, वो क्या हम कर देंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ठीक है, ये एक्सचेंज डिफरेंस को. दूसरा है लॉन्ग टर्म लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल. लोन कब लिया हुआ है? 1 अप्रैल को.
अमाउंटिंग टू 75 लाख। ओके, तो 75 लाख का लोन लिया है फ्रॉम अ यूएस कंपनी, ठीक है। 5 लाख वॉज रीपेड ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हमने रीपे भी कर दिया है, कितना, 5 लाख। ओके, रिकॉर्डेड एट $1 70.5, मतलब जिस दिन को हमने रीपे किया उस दिन पे 70.5 उसका प्राइस था। $1 इज इक्वल टू 70.5 रुपी। इंटरेस्ट हैज बीन पेड एज एंड व्हेन डेबिटेड बाय यूएस कंपनी, ठीक है वो तो। अब $1 इज इक्वल टू 73.5 ऑन 31 मार्च 20 एंड 72.5 ऑन 1 अप्रैल, जो पहले आपको दिया था राइट पार्ट 1 में डी के, वही यहाँ पे रेट दिए हुए। अब यहाँ पे देखें तो भाई लॉन्ग टर्म लोन जब 1 अप्रैल को मैंने लिया होगा 75 लाख का एट 72.5, तो कितना यूएस डॉलर होगा भाई, 103,448, इतना हमने डॉलर का लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने रीपे कर दिया 5 लाख। अब 5 लाख जब रीपे किया तब मैंने परचेस किया होगा एट द रेट 70.5, तो कितना यूएस डॉलर, 7092, इतना डॉलर हमने रीपे कर दिया। अब लॉन्ग टर्म लोन कितना आउटस्टैंडिंग होगा भाई, जितना लिया था 103,448 माइनस 7092, इतना आउटस्टैंडिंग रहेगा 96,356। ओके, अब हुआ क्या, कितना रियलाइज्ड गेन होगा ऑन सेटलमेंट, राइट। यहाँ पे जब 31 दिसंबर को हुआ है तो भाई लोन जो मैंने लिया था वो कितने प्राइस पे लिया था, 72.5। जब रीपे किया तब 70.5 पे किया, है ना, तो पर डॉलर मुझे ₹2 का फायदा हो गया। और कितने डॉलर्स मैंने रीपे किए भाई साहब, 7092, so per dollar the gain is 7092, so net gain right now, realized gain is 14,184. Now still the loan is outstanding on balance sheet date, correct? So at what rate we have acquired this thing, 72.5 rupees for $1, ठीक है। But right now the value is what, right now the exchange rate is what, 73.5. It has increased by ₹1, right, per dollar. So obviously whatever is the outstanding 96356 is what, my excess liability, which is nothing but loss, right? And this can be treated in two ways. Either you debit it to P&L or you accumulate it in this particular account. So on and on, not that difficult, right? Question number 1 20 मार्क का बेसिक ओके क्वेश्चन था, राइट। पहले 3 क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूं कि 5-5 मार्क वाले बहुत ही ज्यादा बेसिक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क के लिए डिपार्टमेंट से पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन में बोल सकता हूं और इजी क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए। प्रीवियस अटेम्प्ट में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन केम फॉर 5 मार्क, बट नॉट दैट डिफिकल्ट। XYZ garage consists of 3 departments: spares, service and repair, okay, and each department is being managed by departmental manager and whose commission was respectively 5, 10 and 10 for the respective departmental profit, subject to a minimum 5,000 in each case, ठीक है। तो बोला गया है कि भाई तीनों डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं दे आर गोइंग टू गेट 5%, 10% एंड 10% ऑफ प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, बट मिनिमम 5,000. So in no matter whatever is the profit or loss, they are going to get what, minimum 5,000. 5,000 रुपए तो मिलेंगे ही. So can I say the commission will be 5,000 or the 5 or 10% of profit, whatever it is, whichever is higher. अगर commission मिलता है 3,000 and so we will give 5,000, right? If it is 5,100, then we'll give what, 5,100, but minimum they should get 5,000 rupees for sure. Okay. Inter-department transfer takes place at a loaded price, okay, invoice price, markup price. From spare to service, 5% above cost. So whenever spare is sending anything to service department, right? So 100 plus 5% is the profit they are charging. Spare to repair, if spares department is giving something to repair, 10% above cost, and repair to service is 10% above cost. Okay. In respect of the year ended 31st March 19, the firm had already prepared and closed the departmental trading and profit loss account. Okay, firm ने बना दिया है trading P&L, कोई दिक्कत नहीं. Subsequently, it was discovered that the closing stock of department had included inter-departmentally transfer goods at loaded price instead of correct cost price. Now, one thing is very much sure: if you include, right, inter-departmentally transfer goods at a loaded price, your department profit will not show correct, right?
क्योंकि मैंने किसी और को ट्रांसफर करके प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ऑब्वियसली माई डिपार्टमेंट विल गेट मोर प्रॉफिट ऑन दैट. सो हमको इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. वी शुड ऑलवेज रिवर्स interdepartmental profit, that is unrealized only. Realized we don't have any problem, right? But unrealized profit, right, which is also known as stock reserve. So we should create stock reserve, we should adjust from the sending department, and then we get what, the correct realized profit by the individual department. From that we will adjust the what you can say your commission, right? Uske base pe dena chahiye. So following information is given. स्पेयर्स नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 38,000 स्पेयर का लॉस दिया गया है 38,000. सर्विस प्रॉफिट 40,000 50,400, रिपेयर 72. सो दिस इज लॉस, दिस एंड दिस टू प्रॉफिट. ठीक है, अगर लॉस हुआ तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस वी वुड हैव गिवन व्हाट, फ्लैट 5,000 रुपीज कमीशन. सीधा बात है ना भाई, क्योंकि प्रॉफिट का तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं. Here this too we have to reverse work out and find out that whether we have given what 5,000 rupees or what I mean the actual commission, right? वो हम देख लेंगे. Interdepartmental transfer included at loaded price total 65,000 in service, that they have received 21 from spare and 44 from repair. जरा देखो तो, from spare service department receiving at 5%. So this, can I say in this service department has booked 5% profit? So this 21,000 into 5 by 105, this service department should reverse, right? और ये 44 किसने बुक किया हुआ है भाई, रिपेयर्स ने. रिपेयर इज ट्रांसफरिंग टू सर्विस एट 10%, तो ये 44,000 इंटू 10 बाई 110 रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि रिपेयर का कॉस्ट एंड सर्विस की, रिपेयर का कॉस्ट प्लस 10% ऐसे भेजा जाता है. And in repair 4,202 rupees received from spare. This is cost of repair, but selling price for, or you can say the transfer price, loaded price for spares department. How spare is transferring to repair? 10% above cost. So we should reverse like this, 4202 into 10 by 110. In short, nothing to be reversed in service department, and in repair one amount, and spare combination of this two amount we have to reverse, we have to deduct from profit loss, and then we get the correct profit loss. On that we should calculate commission. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने वर्किंग नोट बना दिया. 1,000 रुपीज आएगा 21,5 by 105, जो सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने पे स्पेयर्स ने अर्न किया होगा. फिर 382 अगेन अर्नड बाय स्पेयर्स डिपार्टमेंट, राइट? 4,202, 10 by 110. So in and all, the total profit what spares department have booked, right, out of that 1382, right, is the not realized profit by the firm, the business entity, that we have to reverse. Okay, and repairs 44, 10 by 100, which they have given to service. So repair department will reverse 4,000. Now coming back here, what they have given already, 38, 50,400 and 72. Obviously in 38 I have to add back commission because it's less than, I mean there is no chance that we must have given any profit other than this, because ये loss है. यहाँ पे हम देखें 50,400, तो 50,400 डिवाइड बाई 10 by 90. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग कि if the profit is 100 and we have given 10 commissions, तो after that कितना बचेगा भाई, 90 बचेगा, है ना? तो we just giving proportion that if 90 is the remaining profit, 10 is the commission, इतने पे कितना, this multiply by this, divided by this, answer is this. Clear? Right? Okay. So that will give you 5,600 and it is obviously more than 5,000, तो हमने यही दिया होगा. Then next is what, 8,000 rupees आएगा, 72 सेम रे. तो अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया होता, अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया होता तो क्या होता, 33,000 यहाँ पे लॉस होता. क्यों? क्योंकि 38,000 लॉस था टोटल कमीशन देने के बाद. अब कमीशन नहीं दिया होता तो लॉस कितना होता, 33. हियर 56,000, हियर 80. नाउ वी विल एडजस्ट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. नाउ वी विल एडजस्ट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज 1382 इन केस ऑफ स्पेयर्स, रिपेयर 4,000.
क्लियर। देन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, 33,000 लॉस, उसमें से और हम प्रॉफिट घटाएंगे तो 34,382 आ जाएगा, है ना। 56 यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, 80 माइनस 4 76, एंड इसके ऊपर रिस्पेक्टिव हमको कमीशन चार्ज करना पड़ेगा विच इज 5,000। अगेन यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई होगा आपका, इसका 10%, इसका 10%, दिस विल बी द करेक्ट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलिए अब करते हैं पार्ट बी। 10 मार्क के लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ये क्वेश्चन आया गया था, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि ये आई मीन नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पेपर ओवरऑल लेंथी तो था ही, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट इसमें आपके मार्क्स ना कटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं इसमें। देखते हैं। मिस्टर प्रकाश फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट बिजनेस। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे हैव गिवन 1920, कैश एंड बैंक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ओपनिंग रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स है, इंट्रोड्यूस किया है हुआ है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, ड्रॉइंग, कैश परचेज, क्लोजिंग बैंक एंड कैश, ओके। देन पर्टिकुलर्स ऑफ अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो मशीन ओपनिंग क्लोजिंग सेम टू सेम दिया है, इट मीन्स इज नो एडिशन नो सेल। फर्नीचर सेम टू सेम, डेटर्स ओपनिंग गिवन, क्लोजिंग नॉट गिवन, देन क्रेडिटर ओपनिंग गिवन, क्लोजिंग नॉट गिवन, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ईयर है, सो दिस इज वन ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट कि इसके ऊपर हमको पूरे साल का अक्रूड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट अक्रूड इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग क्लोजिंग, फाइन। Additional information, only 3 information they have given. 20% of total sales and 20% of total purchase are in cash. Okay, so can we say that if cash is 20, then credit is 80, total 100, like that, right? So can we say over here, ये जो आपका दिया है information 170, 800 and cash purchase 122, 750. Based on this, we have to calculate what total purchase and total sales, right? And उसमें से हमको क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स भी मिल जाएगा फॉर डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए हमको कलेक्शन और पेमेंट भी दिया है, तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ऑल्सो यूज वॉट आई मीन वी कैन ऑल्सो फाइंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। फिर क्या, of the debtors, a sum of 7,200 should be written off as bad debt. Okay. And further, a reserve for doubtful debt to be created at 2%. वो हम at the end provide करेंगे. Provide 10% debit per annum on machinery and furniture. ठीक है. You are required to prepare what trading P&L and balance sheet. अब यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट ओपनिंग कैपिटल प्लस we will prepare one debtor and creditor account also. Clear? So if we start here putting information, machine 85 opening they have given, okay, so we have prepared here trading and P&L, okay, then balance sheet, closing, working notes, opening balance sheet, debtors, creditor account we have given. Now opening balance sheet 85,000 machine, here machine 85,000 minus 10% depreciation 8,500, so here closing balance, and ये डेप्री कहाँ जाएगा भाई, P&L में, so P&L में मशीन का डेप्री 8,500, correct. What second information they have given, 24,500, 24,500 furniture, okay. So if we talk about furniture, opening balance furniture 24,500 asset side, closing balance sheet 24,500 minus 10% डेप्री, सो 22,050, और ये डेप्री कहाँ जाएगा, P&L में, सो टोटल डेप्रीसिएशन इज 10,950, ओके। और इंफॉर्मेशन जो आपको दिया है तो ये एडजस्टमेंट डन। इसकी बात करें टोटल सेल्स टोटल परचेजेस की, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग में जाएंगे और ये स्टॉक पुट कर देंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग 38,600, 55,700, ओपनिंग स्टॉक 38,600 एंड 55,700, और दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग स्टॉक 38,600 एंड क्लोजिंग स्टॉक 55,700। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है आपको, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर देंगे, चलिए 155,500 एंड 60,200, तो डेटर में ओपनिंग क्रेडिटर में ओपनिंग, और ये दोनों कहाँ चला जाएगा, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब
सेल्स की बात करें तो 20% सेल्स इज कैश, 80 क्रेडिट। ओके, तो यहां पे सेल्स इंफॉर्मेशन कितना है भाई, कैश सेल्स 170,800, मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया वो 170,800, उसका मैंने यहां पे प्रपोर्शन दे दिया, राइट, दैट इफ 20 is cash, 80 is credit, so if 170,800 is cash, how much is credit? तो 638, 683, 200, या फिर आप टोटल सेल्स भी फाइंड कर सकते हो कि 20, 100, 170, 800, then this will give you what? Total sales. And difference you can put as cash, credit sales. Now this is credit sales, 683, 200. कहाँ पोस्ट कर देंगे उसको? डेटर में। ओके, सिमिलरली परचेजेस, तो हमने ये इंफॉर्मेशन ले लिया। कैश परचेज 120 to 750, सेम टू सेम प्रपोर्शन, 120 to 750, 20/80 क्रेडिट परचेज, एंड दिस इज टोटल परचेज। क्रेडिट परचेज कहां जाएगा? क्रेडिटर में, ठीक है। अच्छा, अब और इंफॉर्मेशन हम यहां पे देखें कि 7,200 हमको क्या करना है भाई, बैड डेट राइट ऑफ कर देना है। तो ये चले जाएंगे डेटर के अकाउंट में 7,200 बैड डेट, और उसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? आपके पीएनएल में। पीएनएल में बैड डेट 7,200, ठीक है। अब ये तो प्रोविजन का एंट्री हम लास्ट में ही कर पाएंगे, उससे पहले तो नहीं। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट 85, तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखते हैं भाई। ओपनिंग बैलेंस शीट 85 और क्लोजिंग बैलेंस शीट 85। द मोमेंट यू टेक दिस, इमीडिएटली हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 85 into 12%, राइट, टोटल 10,200 इज माई इनकम। पर देखा जाए यहां पे तो रिसीव कितना हुआ है? 9750, मतलब जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? रिसीवेबल। तो रिसीवेबल इंटरेस्ट 10,200 माइनस 9750, 450, वो एंट्री भी हो गया हमारा। अच्छा, और क्या है भाई यहाँ पर एडजस्टमेंट में? सारे एडजस्टमेंट देखिए हमने ले लिए यहाँ पे, है ना। ये तो ऑब्वियसली लास्ट में आएगा ही आएगा, ये हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग 12, क्लोजिंग 14, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ही। ये क्लोजिंग 14, ओपनिंग 12, और ये एडजस्ट होगा सैलरीज पेड। कितना सैलरीज पेड है भाई? 75, तो हम पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे इसको। 75 माइनस ओपनिंग 12 प्लस क्लोजिंग 14, बिकॉज जो 75 पे किया गया है इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 12,000 pertaining to previous year, remove it, but it do not include what? Payment of current year of 14,000 included, तो on and all 77। तो अब roughly all adjustments are taken care of, right? What is pending is this 2% and this 2, but that we can do at the end। तो फिलहाल जो कैश बुक दिया है उसका स्क्रूटिनी करते हैं। उसमें क्या दिया है? ओपनिंग बैंक बैलेंस 16,250, ओपनिंग बैलेंस शीट में रख देंगे भाई उसको 16,250। देन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 481, डेटर्स वी विल क्रेडिट 481, ओके, दिस डन। कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000। नाउ व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल? नहीं पता, कोई भी कैपिटल हो, क्या फर्क पड़ता है, एडिशन तो होगा ही होगा। तो यहां पे क्लोजिंग में हम प्रेजेंटेशन बताएंगे कि ऐड फ्रेश कैपिटल 50,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो ले लिया, मतलब डेबिट साइड जो भी रिसिप्ट साइड में दिया गया था वो सब हमने कंसिडर कर दिया। अब पेमेंट में लेते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर 343, तो क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक, राइट, कैश और बैंक जो भी लिखो 343। सैलरी हो गया। अब जनरल एक्सपेंस एंड रेंट एंड टैक्सेस, ये दोनों के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वी अज्यूम कि दिस इज फॉर करंट ईयर, डेबिट टू पीएनएल 22,500 and 11,800, okay। Drawings 96, reduce it from what? Your capital, हो गया। उसके बाद क्या है भाई? कैश परचेज ऑलरेडी ट्रेडिंग में चला गया। क्लोजिंग बैंक एंड क्लोजिंग कैश, ओके, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा भाई, ठीक है, ये दोनों आ गया। और क्या चाहिए? तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन बाकी नहीं है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम अगर क्लोज करना शुरू करें अपने वर्किंग नोट को, डेटर्स क्लोज कर देंगे। ओपनिंग है, सेल्स है, रिसिट्स है, बैड डेट, दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। ये क्या हो गया भाई? मेरा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग।
creditor opening, purchase, payment, this will be what? My closing balancing figure. 208,200 closing balance sheet आ गया. This 350 will go in closing balance sheet, but we have one attachment with this, that is for bad debt reserve, 2%. So 7,000 and net debtor outer column 343, and this will go where? In your profit and loss account. Clear? Okay. What else we have? Opening balance sheet. So everything is there. Balancing figure 330 to 150, उसको हम ट्रीट करेंगे ओपनिंग कैपिटल. तो 330 टू 150. अब क्या जो बचा है? ट्रेडिंग पीएनएल. ट्रेडिंग में डू वी नो ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स, परचेज, एवरीथिंग? यस. सो बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट? जीपी. जीपी हम लेके चले गए कहां पे भाई? पीएनएल में. देन वी हैव डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड माय नेट प्रॉफिट इज 1,31,100 व्हिच विल बी एडेड टू व्हाट? कैपिटल. तो यहां पे ऐड कर दिया 131,100. ओके, दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल. और इन सब का टोटल करेंगे 639,450 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. थोड़ा लेंथी है, आई एग्री, बट इसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि इसमें बैलेंस शीट टैली होने के चांसेस और उसकी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा थी. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2B. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A. नाउ 3A अगर देखें तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ICAI पूछता है, तो वही है 10 मार्क के लिए. राइट, लेट अस डिस्कस दैट. P Limited had 8,000 equity shares of K Limited at book value of 15 per share. Face value कितना है भाई? 10. On 1st September, P Limited acquired another 2,000 equity shares at a premium of 4 per share. Okay. And K Limited announced bonus and right issue for existing shareholder. तो पहले ये दो एंट्री जो है उसको हम पोस्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में. एक ओपनिंग है 8,000 और एक परचेस है. पूरा क्वेश्चन अगर आप देखो कहीं ब्रोकरेज की इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स ऑफ के लिमिटेड 1419 ओपनिंग बैलेंस 8,000, 15 रुपए की वैल्यू थी. सो 8,000 इंटू 15 1,20,000 है ना कॉस्ट बुक वैल्यू. दूसरा जो परचेस किया 2,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, 2,004 रुपीज पर शेयर. सो प्रीमियम मतलब क्या? ओवर एंड अबाव फेस वैल्यू. सो 2,000 इंटू 14, 2,000 इंटू 14 what? 28. Okay, 1st September we have purchased it. Now bonus was declared at the 2 equity share for every 5 shares held on 30 September. Right, हमारे पास कितना है? We have 8,000 plus 2,000, 10,000. So if you have 5 then you will get 2. अगर आपके पास 10,000 है तो कितना मिलेगा भाई? 4,000 shares. Right, you will get 4,000 shares. So here bonus shares 30 September, in particular में आप कुछ भी लिख सकते हो, bonus shares, bonus issue, right? Then no in dividend, nothing in rupee column, amount column. क्यों? क्योंकि बोनस का कॉस्ट 0 होता है. बोनस का कॉस्ट क्या होता है? nil. अब right shares to be issued to existing shareholder on 1st December, the company had issued 2 right shares for every 7 shares held at 25% premium ऑन फेस वैल्यू. ओके, तो हमारे पास कितना है भाई? 8,2 ये तो था. आई गॉट बोनस ऑफ 4, मतलब आई हैव 14,000 शेयर्स. व्हाट इज माय राइट एंटाइटलमेंट? इफ यू हैव 7 देन 2. सो इफ आई एम हैविंग 14,000 देन व्हाट? 4,000 इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आई एम एंटाइटल्ड टू गेट. करेक्ट? ओके. No dividend was payable on these shares. Okay. The whole sum being payable by 31st December. Okay. Existing shareholder entitled to transfer their right. Okay. P Limited exercise option and 50% of its entitlement and sold remaining rights at 8. मतलब जो 4,000 shares हम entitled थे, out of that for 2,000 shares we are purchasing at 12.5, 25% premium on face value. But remaining 2,000 we have sold at 8. So 16,000 is the sale of right and 25 is the cost of buying new 2,000 shares. कैसे ट्रीट करेंगे उसको? वर्किंग यहाँ पे दिखाया हुआ है. राइट, नाउ दिस 20,000 will go to investment account 31 December 19 to bank sale of right shares 2,000 and 25. Where this will go? 16.
without fail you should mention this in your answer, that as per para 13 of AS 13, that amount received on sale of right 16,000 should be credited to profit and loss account, right? ये AS 13 का provision है, right? A clear cut guideline is given that whenever you are selling right, the amount should be transferred to what? Profit and loss account, right? This is what we do in investment chapter. Clear? Okay. Then what next? They have given dividend for the year ended 31st March 19 at the rate 20% was declared by K Limited and received by P on 20 January. Now the question is, क्या ये 2000 पे मिलेगा? नहीं. क्या ये बोनस पे मिलेगा? नहीं. क्यों? Because bonus came into existence in current year. So we will get in this too. और जो 8000 पे मिले, it's my dividend income. But this is what? My pre-acquisition dividend which should be adjusted against cost. So उसका यहाँ पे वर्किंग दिखा दिए. By bank dividend 20 January 8000, 10 rupee face value 20, 16. 2000, 10 rupee face value 20%. This 2000. Total 4000 recovery against cost. Then on 1st Feb 20, P Limited sold half of its shareholding at premium of 4. Premium of 4 means nothing but 14 rupees, right? Over and above face value. 8 plus 2, 10. Plus 4, 14. Plus 2, 16. I was having 16,000 shares. Out of that, I have sold 8,000. 50%, right? तो 8,000 से शेयर्स हमने सेल कर दिए एट 14 रुपीज. रिकवरी कितना हो गया? 1,12,000. अब इमीडिएटली हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. मतलब क्या मैं बताऊं, 120 प्लस 28 प्लस 25 माइनस 4,000 इज द टोटल कॉस्ट फॉर 16. हाउ मच फॉर 8? तो यहाँ पे हमने लिखा 120, then 28, 25 minus 4 is the cost of 16. How much for 8? That we got 84,500. If the proportionate cost is 84,500 against the total selling price of 1,12,000, which will give you 27,500 profit. We'll recognize here profit on sales, same date, 1st Feb. Correct. Now, no further transactions are given. The market price was given as 13. And we know very well, we will value at cost or market price, whichever is lower. Fine. So, here, now, if you want to calculate cost separately, you can calculate, or you can apply the same formula here, that this is for 16,000, how much for 8,000? It will give you same to same answer, 84,500. That's why I have given note that there is a rule that if you recognize profit or loss immediately after sale, then investment will be carried at cost. So I am taking balancing figure, right, this 84,500 as my cost. But market value से compare करना पड़ेगा. 8,000 into 13 कितना? 1,04,000, whichever is lower. देख लो कैलसी में, right? It's 84,500. Now 8,000 shares, 84,500. No difference in your amount column, neither face value column, and जो डिविडेंड है 16 वो हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च को. इजी क्वेश्चन, राइट? कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं था. ये क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको, अगर जब आप सिलेक्शन करते हो क्वेश्चन का उसमें, राइट? देन अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेसर्स MJ company on 31st December 19 from the following particulars related to period from 1st April 19 to 31st December. ओके, तो ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन दिया गया आपको. You are required to ascertain the amount of claim to be filed with insurance company for the issue, loss of stock. ठीक है. Company has taken policy of 1 lakh. Okay. Subject to average clause. अगर नहीं बोला है तो it is advisable कि आप नोट लिख दो कि वो average clause है ही है, right? 90% केसेस में होता ही है. And the value of goods salvage is 31. That is also we assume कि it is not handed over to insurance company. GP is given, very good. If GP is given, no need to prepare trading account of last year. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो लेंथ भी इसका इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, कम लेंथ वाला क्वेश्चन है. तो ओपनिंग स्टॉक 150 दिया है आपको, परचेज 420, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर ऑफ सेल्फ यूज, सेल्स वैल्यू. अब सेल्स वैल्यू है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पे लाके माइनस करना पड़ेगा. इसका कॉस्ट कितना होगा? 80%. 20% जीपी तो 80% कॉस्ट, या इसमें से आप बोलो 20% माइनस कर देंगे, बात एक ही हुआ. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी 4,000, वो भी माइनस करेंगे 420 से. तो उसका एक वर्किंग नोट हम बना देंगे यहाँ पे सेपरेटली. परचेज 420, चैरिटी माइनस किया, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर एट कॉस्ट 8,000. फिर क्या है? परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ 5,000 ऑफ टूल्स, राइट? तो टूल्स वो हमारा गुड्स नहीं है, राइट? दे हैव बीन
कैपिटलाइज, जो कैपिटलाइज किया तो परचेज में नहीं आना चाहिए, तो 5000 वो भी माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ऑन एंड ऑल नेट परचेज आपका कितना आ जाएगा, 4,03,000, इट्स नॉट प्रिंटेड ओवर हियर, ठीक है, इट्स 4,03,000। फिर वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, अगेन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, माइनस करेंगे 90,000 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 84,000 रुपीज। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी 25, जब कंसाइनमेंट करते थे हम क्या करेंगे, एंट्री पास कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने। देन सेल्स 610 और सेल्स रिटर्न 10, नेट सेल्स कितना भाई, 6 लाख। क्या आपको जीपी पता है, हाँ, ओपनिंग यस, जीपी यस, बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, राइट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट, तो वो 1,32,000 रहेगा। अब हमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट बना देंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एज ऑन डेट ऑफ हायर कितना, 132, उसमें से हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सैल्वेज गुड्स था वो हमने हैंड ओवर नहीं किया, 31, तो हमारा ग्रॉस क्लेम, राइट, या फिर लॉस सफर्ड, जो भी बोलो आप, राइट, वो कितना आ रहा है हमको, 1,01,000। हमारा लॉस सफर्ड या ग्रॉस क्लेम कितना मिल रहा है हमको, 1,01,000। बट क्या पूरा मिलेगा, नहीं, क्योंकि हमारा जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो 1 लाख है, जो हमारा इंश्योरेबल अमाउंट था, सम इंश्योरेबल था 132, हमको कितना रिस्क था 132 का, बट हमने इंश्योर्ड कितना करवाया 1 लाख। तो एवरेज क्लॉज यही बोलता है कि यू विल बी गेटिंग व्हाट, proportionate compensation if the, I mean 132 is the value, right, then 1 lakh you have insured, right, then how much is the I mean compensation for 1,01,000, so that will give you 76,515, easy, right, not that difficult question, right, from my opinion। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। During the year 1920, A Limited, a listed company, made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debenture issued 1 lakh, face value and issue price 100 per debenture, and whole issue was underwritten by X Limited. तो X Limited underwriter है हमारा, and हम पूरा issue प्राइस एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। कन्वर्टेबल पोर्शन 60%, ओके। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू, मतलब 60% क्या है भाई, कन्वर्टेबल पोर्शन, 40% इज नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट फर्स्ट में, सो फ्रॉम दैट 6 मंथ्स, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सो 31st October 2019 we are supposed to convert this. Allotment was on 1st June, interest 15% per annum, right, from the date of allotment they have given specifically, and value of equity share for the purpose of conversion 60, where the face value is 10, so I can say security premium is what, Baba, 50 rupees, okay. Here one more thing to highlight is listed company. Why? Because of provisions of Companies Act, right, we are supposed to make investment but not to create reserve. Then underwriting commission 2%. Number of debenture applied by public, how much, 80,000. Number of debenture applied by public is 80, so I mean underwriters, they have to purchase 20,000 debenture, because whatever unsubscribed portion is there they will purchase. Interest is payable half yearly on 30 September, 31st March, and you are supposed to pass journal entry. चलिए, तो पहला एंट्री जो पास करेंगे हम, that will be on 1st May for receiving application money, bank to debenture application. Now here you can also write debenture application and allotment if you want, right, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि भाई जब एक ही एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा मिल जाता है, then you can use application and allotment account. तो 80 लाख रुपीस अब हम इसको अलॉट करते हैं 1st जून को, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर, बट एट द सेम टाइम जब अंडरराइटिंग कमीशन हमने अंडरराइटर्स अपॉइंट किए हुए हैं एंड देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ द इश्यू, तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही हम उनको लायबल कर देते हैं पेमेंट के लिए। दैट्स वाई अंडरराइटर्स टू 15% डिबेंचर, मैंने 2 एंट्री क्लब कर दिया यहाँ पे, एंड दैट इज फॉर 20,000 इनटू इश्यू प्राइस, सो 20 लाख। ऑन एंड ऑल वी हैव डिबेंचर ऑफ 1 करोड़। नाउ उसी दिन पे हम उनको कमीशन भी देंगे, कमीशन इज ऑलवेज ऑन द टोटल इश्यू साइज इश्यू टू पब्लिक, राइट, सो 1 करोड़ इंटू 2%, 2 लाख। नाउ हमें अंडरराइटर को कितना पैसा देना है भाई, 2 लाख, बट लेना कितना है 20, नेट कितना ले लेंगे 18 लाख, राइट। हियर अंडरराइटर्स यू कैन ऑल्सो राइट एक्स लिमिटेड डायरेक्टली,
राइट, अंडर राइटर्स इंटू ब्रैकेट एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड इंटू ब्रैकेट अंडर राइटर्स, ठीक है, हमको नाम पता है। अब फर्स्ट डे जो जनरल अजम्पशन हम आईसीआई में लेके चलते हैं कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा अगर हुआ इन्वेस्टमेंट का या फिर डीआरआर का, हम पहले दिन पे क्रिएट कर देते हैं बाय अज्यूमिंग कि हमारे पास पैसा और रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर रिजर्व तो क्रिएट करना नहीं है बट इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, ठीक है, क्योंकि उनको ही हमको कैश देना होगा। तो 15% ऑफ नॉन कन्वर्टेबल, तो 1 करोड़ इंटू 40% नॉन कन्वर्टेबल है 40 लाख इंटू 15%, तो 6 लाख रुपीज। अब इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट 30 सितंबर को 1 करोड़, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर, टाइपिंग मिस्टेक, इट शुड बी 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 15% फॉर 4 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जब हमने इश्यू किया तब वो अलॉटमेंट हुआ था कब? 1 जून को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर पहला जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो होगा सिर्फ 4 महीने के लिए, तो दैट इज 5 लाख। अब 31 अक्टूबर जहां पे हमको कन्वर्जन करना है, देखो जब भी कन्वर्जन करेंगे तो ऐसा एक रूल है कि भाई जब भी कन्वर्जन करो तो उसके पहले का जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होता है कंपनी को वो खारिज करना पड़ता है, राइट। कंपनी शुड मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट in respect of at least that convertible portion. What is the convertible portion? 60%, sir. So 1 crore into 60%, 60 lakh rupees. At 15%, how many months? Only 1 month. Why? Because just now on 30 September, you have given them interest. So 1 month interest more, October, right? That will give 75,000. Now you can redeem it. So same date, debentures to equity capital to premium, right? 10 is to 50. 10 face value, 50 is your premium. In that ratio, we will distribute. Then 31st December, debenture interest to bank. How much on remaining? 40 lakh, 15%, 6 months. Right, 40 lakh, 15%, 6 months. Because this 40 lakh हमने इंटरेस्ट कब दिया था? लास्ट जून में, सॉरी सितंबर में। तो सितंबर से at the end you can pass here, you should pass one more entry for transfer on 31st December 2000, not December, it should be March. Here it should be March, right? So 31st March we have to pass one more entry for what? PNL to debenture interest, that is 3 lakh, this 75,000 and this 5 lakh. तो वो भी एक एंट्री पास करना चाहिए। आई विल ऐड दिस इनटू योर पीडीएफ, जो मैं आपको आंसर दूंगा उसमें ये एंट्री ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑन एंड ऑल इजी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। उससे कहीं ज़्यादा इजी है क्योंकि वहाँ पे आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वगैरह वगैरह शायद दिया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो, अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ 2-3 क्वेश्चन मिला के बनाया गया, राइट। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बट डिफरेंट प्लेस, राइट। तो इसमें इंटरप्रिटेशन में क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। इसके लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड, ये पूरा एक्सट्रैक्ट दिया है फ्रॉम द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड March 20, ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग लायबिलिटी। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज देयर इन प्रीवियस अटेम्प्ट आल्सो, ठीक है, बट इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया है। 30 लाख प्रॉफिट दिया है, डेप्री दिया है, नॉन कैश आइटम, हमको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट किया था, ऐड बैक कर दो, तो वो 30 लाख यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट करेंगे 7 लाख ऐड कर देंगे। हाँ, फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये भी क्या है भाई? एक बुक एंट्री ही है 45,000, राइट। तो डेबिट किया था, क्रेडिट कर दो, मतलब ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, अब ये है तो कैश का आइटम बट उसका एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड बैक करके इसका रिप्लेसमेंट कर देंगे दूसरी जगह पे। तो ये 435 यहां पे ऐड हो गया और इसको हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया, मतलब है कुछ नहीं, वहां से ऐड होगा, यहां से माइनस होगा, जस्ट अ रिप्लेसमेंट, हम उसका प्लेस चेंज कर रहे हैं, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 350 सोल्ड फॉर 375, मतलब क्या भाई? प्रॉफिट हुआ होगा 25K, हम क्या करेंगे उसको भाई? 25K को वहां से रिमूव कर देंगे एंड एंटायर 375 वी विल पुट व्हाट? इन इन्वेस्टिंग। तो यहां पे हमने 25 हटा दिया एंड एंटायर 375 वी हैव पुट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि कितना कैश मिला हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, भले ही मिला है, कैश भी है, बट ये ऑपरेटिंग में से हटा देंगे हम,
तो यहाँ से हटा के यहाँ पे अगेन हम उसका प्लेस चेंज करें, इट्स रीप्लेसमेंट ऑफ द एंट्री। इनकम टैक्स पेड, तो वो यहाँ पे हम अलग से लिख लेंगे। इनकम टैक्स पेड, कंपनी issued 60,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% on 10th April। तो 60,000 into 12, 10 रुपी प्लस 20%, सो रफली 7,20,000 हमको कैश मिला होगा, राइट। तो ये कहाँ जाएगा आपके फाइनेंसिंग में, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। उसके बाद 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each were redeemed on 31st March at 5% प्रीमियम। तो ये जो 20,000 शेयर्स हैं उसको हमने 105 पे रिडीम किया होगा 20 लाख रुपीस देके, 21 लाख, राइट। तो वो भी हमारा पेमेंट में चला जाएगा। सर सीआरआर का क्या करेंगे? बुक एंट्री है, राइट, बिकॉज वो रिजर्व से घटेगा और सीआरआर में जाएगा। सो प्रीमियम रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह सब है, तो उसमें वो सेट ऑफ हो गया होगा, राइट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सीआरआर का एंट्री हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत, जहां मिल रहा था उसका कैश का इफेक्ट हमने ले लिया है, राइट। और वैसे भी हमको पूरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो बेटर भी इग्नोर इवन प्रिपेयरिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर क्या, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 11 लाख। यहाँ पे ये नहीं बोला कि इक्विटी का है अलग से या प्रेफरेंस को अलग से दिया था, तो हियर आई एम अज्यूमिंग, ये मैं यहाँ पे अपना अजम्पशन लगा रहा हूं कि ये 11 लाख रुपीज क्या है भाई, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ यहां से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि वो वापस अप्रोप्रिएशन की आइटम है, तो वहां पे 30 लाख में एडजस्ट नहीं हुआ होगा। अब ये दो कोई दूसरे क्वेश्चन के उठा के यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, राइट। तो इससे थोड़ा बहुत यू कैन से chaos होगा यहाँ पे, ध्यान से एकदम। अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 7 lakh was purchased in part exchange of an old plan on 1st January. Book value of the old plant was 8 lakh, okay, but the vendor took over the old plant at a value of 6 lakh only। मतलब 6 लाख में वो प्लांट लेके गया, 8 लाख का जिसका बुक वैल्यू था। तो what is the value of new plant? 7 lakh, and we have given in exchange our old plant how much? 6 lakh। What is the difference? 1 लाख। वो क्या होगा, पे करना पड़ेगा, लिखा ही है देखो, द बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू वेंडर थ्रू चेक, राइट, ऑन 30 मार्च। तो ये हमने दे दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 1 लाख। अब रही बात वो 2 लाख की, लॉस भी तो होगा, 2 लाख रुपीज लॉस भी तो होगा। ये लॉस, राइट, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, और इवन अगर ये लॉस यहाँ पे होता तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शायद दे भी देते कि यहाँ पे डेबिट किया गया। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया है, राइट। अगर आपने इसको डेबिट किया होता तो इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए यहाँ पे, है ना, वो नहीं दिया। सो आई एम अज्यूमिंग, ये मेरा अजम्पशन है यहाँ पे कि ये 2 लाख रुपए हमने अभी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रखे होंगे। दिस लॉस ऑफ 2 lakh would be outstanding in balance sheet and it is not yet written off. That company may write it off in future, but company has decided not to write off this loss of 2 lakh, because if it would have been written off, they must have given information over here. Clear? So we are ignoring this loss of rupees 2 lakh, correct? But if it would have been debited, I might have added back to my what you can say profit, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे assumption है। Again, one more I can say confusing sort of adjustment दिया है यहाँ पे। Many students they were asking that they were unable to understand this particular adjustment properly, right? Let us discuss that. Company decided to value inventory at cost, okay? Whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%. So earlier it was the cost that we will value inventory at what? 10% lesser than cost, okay. But now we have decided that we will value it at what? Cost price. The inventory according to the books on 31st March was 14,76,000. Now it's quite logical. If in current year you have changed your policy, then current year value will be what? According to the new policy. So this I'm taking at cost. The inventory on 31st March was correctly valued. Now again, this is one point where many students will have the confusion that correctly means, what do you mean by word correctly? Correctly right now, see, for this particular adjustment,
राइट, आई एम रिजर्विंग माई ओपिनियन, ये मेरे हिसाब से होगा, ये मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे रिजर्व रख रहा हूँ कि ये 13,50,000 है वो करेक्टली वैल्यू हुआ था उस दिन की पॉलिसी पे, राइट, वो दिन की जो पॉलिसी प्रिवेल कर रही थी वहां पे हम इसको लेके चल रहे हैं कि हाँ दिस वाज वैल्यूड एट 10% लोअर देन कॉस्ट, करेक्ट, बट नाउ इट इज टू बी वैल्यूड एट व्हाट यू कैन से at par, right, above at cost only, right? So this is equal to 90%, so I have to increase 10, that is how much, 150, 150, correct, but ये adjust नहीं हुआ होगा, ये मेरे प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने पोस्ट बैलेंस शीट ये डिसाइड किया, राइट, ये आई मीन वो बैलेंस शीट होने के बाद, सो दिस वुड हैव नॉट बीन एडजस्टेड। क्या ये मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रहा है करंट ईयर का? बिल्कुल, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ओनली आई हैव रिकॉर्डेड हियर लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, right, because it will reduce my current year profit, and that's why this is after revaluation, right, of after adjustment of inventory. This is my starting point, 28,50,000. Similar type of questions are given in ICAI, right? ये ऐसे ही इंटरप्रेट करता है ICAI यहाँ पे, ठीक है। सो अब मेरा इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपीज, राइट, और मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को टच नहीं कर रहा हूँ। वन मोर लॉजिक बिहाइंड दिस इज इफ यू अज्यूम कि नहीं सर दिस इज व्हाट एट 90% एंड दिस इज एट कॉस्ट, डोंट यू थिंक ये थोड़ा अनअप्रोप्रिएट हो जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर का चेंज कर दिया है पॉलिसी चेंज करके और करंट ईयर का फिर भी आप 90 पे कर रहे हो? थोड़ा ऑड अजम्पशन हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आई मीन द इंटरप्रिटेशन लाइक कि हमने करंट ईयर से बोला कि भाई आज से फ्रॉम दिस ईयर वी आर गोइंग टू वैल्यू इन्वेंट्री एट व्हाट cost price. So the closing inventory what I have shown has to be according to the new policy. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इवन इंश्योरेंस क्लेम में भी आपको दिए जाते हैं कि प्रीवियस ईयर का पॉलिसी वाज रिड्यूस बाय आई मीन टू रिड्यूस 10% फ्रॉम कॉस्ट, बट फ्रॉम करंट हाउएवर फ्रॉम करंट ईयर इट वाज agreed to increase it by 10%, so closing will be at 110 and opening will be at 90 something, right? तो ऐसे सिमिलर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे लॉजिक मोर अप्रोप्रिएट मैं बता रहा हूँ जो, राइट, मैंने पहले ही बोला कि आई एम रिजर्विंग माई ओपिनियन फॉर दिस, बट मोर अप्रोप्रिएट इज ओपनिंग इज नॉट एडजस्टेड, right? So now opening is how much? 15 lakh rupees after increase of this. Done? Okay. All adjustments are done. Now they have given this inventory. Now this inventory, what they have given, right? This inventory, what they have given over here, I'll take at what? 15 lakh rupees. And difference of this two will go in change in working capital. So 15 lakh था, 1470 हो गया, 76 हो गया. तो इसका हम एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होता है तो कैश हमारा इनफ्लो हुआ होगा। ट्रेड रिसीवेबल 327 एंड 313, अगेन ट्रेड रिसीवेबल भी कम हुआ, मतलब आई एम अज्यूमिंग दिस एज अ कैश इनफ्लो। कैश एंड बैंक लास्ट में आएगा। ट्रेड पेएबल 284 एंड 287, मतलब अपरेंटली देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, मींस माय कैश इज सेव्ड, कैश इनफ्लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आल्सो इंक्रीज, सो अगेन राइट विल टेक एज अ पॉजिटिव फिगर। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। देन व्हाट नेक्स्ट? कैश एंड बैंक बैलेंस, वो हमको लिख देना है यहाँ पे। अपरेंटली हमने सारी एंट्रीज ले ली यहाँ पे। सो 2850 इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये माइनस करेंगे हम, और आफ्टर टैक्स नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दिस। फिर इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग, नेट चेंज जो आएगा वो 129,800 विच इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ दिस टू, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी दे दिया है कि भाई हमने 6 लाख का जो एक्सचेंज में मशीन दिया था उसका कोई इन्फेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फॉर दैट 6 लाख रुपीज इज नो कैश इनफ्लो आउटफ्लो। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम बनाने की जरूरत नहीं है, सीआरआर का नहीं है, राइट, और रिडम्पशन प्रीमियम एडजस्ट हो गया होगा, करेक्ट। सो दिस वाज सजेस्टेड आंसर फॉर 4B अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A जो आपको पूछा गया था वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर था, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट इसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वगैरह पूछा है तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वैसे तो पूरा पेपर लेंथी ही था, बट ये थोड़ा एक लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर आपने स्टडी मटेरियल ध्यान से किया हुआ है तो शायद इसमें कोई डिफिकल्टी इतना नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं एक बार। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी BK लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड अप, ओके। तो इक्विटी कैपिटल 3 लाख का है।
20,000 9% redeemable preference shares of 100 each fully paid up. ओके, तो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कितना है भाई साहब, 2 लाख रुपीस, ठीक है, और इक्विटी कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 लाख, ठीक है। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये है क्या है भाई, फुल्ली पेड अप, ये जो दिया गया है आपको वो है फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको कॉल वगैरह मंगवाने की जरूरत नहीं है, राइट, इट्स फुल्ली पेड अप ओनली। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, GR, PNL, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड कैश एट बैंक, बट इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के अगेंस्ट उन्होंने लिखा है कि नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, सो इट मीन्स दिस इज जस्ट अ शो पीस, वी कैन नॉट यूज इट, एंड इसको हम बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट में दिखाएंगे, दैट्स इट, राइट, वी कैन नॉट यूज दिस वन, राइट, वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। देन कैश 195, ओके, preference shares to be redeemed at premium of 10%. Okay, so premium on redemption will be what, 2 lakh into 10%, correct? So that will give you 20,000 rupees, which is nothing but loss for you. Okay, and for the purpose of redemption, the debtors are empowered to make fresh issue of equity shares, okay, at par. So whatever issue we are going to make, if any, it has to be at par, face value, after utilizing undistributed reserves and surplus, subject to the condition that a sum of rupees 40,000 shall be retained in general reserve, which should not be utilized. Okay, so there is a restriction, we cannot use a general reserve completely. Okay, company sold investment of 4,500 equity shares in G Limited, costing 45,000 at 9 per share. So 4,500 shares you are selling at 9 rupees, realizing 40,500, है ना, 40,500 मिलेंगे हमको, so resulting in what, loss of rupees 4,500, correct? Then it will be cost what, 45. So this is a loss of 4,500. Why this is important? Because here we are supposed to find out ki how much balance is available for the purpose of transferring it to capital redemption reserve. Then and then only we can figure it out कि हमारा इक्विटी कितना होगा, how much equity shares we are going to issue, ठीक है। तो first of all, this premium on redemption will go where, in profit and loss account, we will set off in what, profit and loss account, ठीक है। Then if we discuss about P&L, we have 60,000, out of 60,000 rupees, 20,000 is utilized for what, premium on redemption, 40 left. Out of that, 4.5 thousand is nothing but loss on sale of investment, so that is gone. So what is left is 35,500, correct? This GR is 120, but whether it is available, no, GR 40,000 is not available, so what is available is 80. So all in all, in order to create CRR, मेरे पास सिर्फ ये दो है, 80,000 and 35.5. तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 2 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का फेस वैल्यू है, दैट यू हैव टू क्रिएट व्हाट, ईदर CRR और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. What is the maximum CRR that you can create? Combination of this two, that is 1,15,500. So I don't have any option except to issue equity share in such a way that I get rupees 84,500 towards face value. Anyways, here we are supposed to issue at par only, so there is no difference, correct? चलिए जर्नल एंट्री दे देते हैं इसके. First here 20,000 rupees will be debited to P&L, जो हमने वहां पे नोट दिखाया. 2 lakh is the face value, in that CRR 115,500, so 84,500 is the balancing figure. First entry for sale of investment, for raising fund by equity, so bank to equity capital 84,500. आप दोनों में से कोई भी एंट्री पहले दो, इन्वेस्टमेंट सेल का, इक्विटी का, डजंट मेक एनी डिफरेंस. देन सेम डे बैंक P&L टू इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिव अमाउंट, राइट, लॉस ऑन सेल. अगर आप लॉस ऑन सेल का अलग से एंट्री पास करते हो तो उसको एक और एंट्री देना पड़ेगा आपको P&L में ट्रांसफर करने के लिए, एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड. फिर हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू होंगे जब रिडम्पशन के लिए. सो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स
एंड टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब क्या करेंगे, एक बार ड्यू होने के बाद हम पहले अगर प्रीमियम कुछ है तो उसको सेट ऑफ करेंगे, कहाँ पे, पीएनएल में। सो पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो सेट ऑफ हो गया 20,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सीआरआर क्रिएट करते हैं इफ रिक्वायर्ड। हमको करना है जी हाँ 115,500 बाय डेबिटिंग व्हाट, जीआर 80 एंड पीएनएल 3500। जीआर पीएनएल का भी यहाँ पे वर्किंग दिखाया गया है कि वो कैसा है, जो वहां पे आपको समझाया था, ठीक है। एंड देन फाइनली सब कुछ होने के बाद उनको पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स टू बैंक। क्लियर, 220। अब जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे हम तो उसमें लायबिलिटी में दो ही चीजें, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल, रादर अभी इक्विटी बचा है, और दूसरा क्या है भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स असेट साइड में एक लौता कैश का आइटम हमको पता है, राइट। उसमें 1,95,000 हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस वी गॉट 84,500 बाय व्हाट, इशुइंग इक्विटी शेयर्स, राइट, बाय इशुइंग इक्विटी शेयर्स 84,500, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,500, वो भी मुझे मिला है, ठीक है। बैंक सिर्फ वर्ड ढूंढ लो बस, और कुछ नहीं है, राइट। थर्ड में भी कुछ बैंक नहीं, फोर्थ में कुछ नहीं, फिफ्थ में कुछ नहीं, इसमें है 2 बैंक, 220 माइनस। सो आपके पास इतना कैश और बैंक बड़ा होगा। अब इक्विटी, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया, इक्विटी कितना है भाई हमारे पास, 3 लाख रुपीज, राइट। एंड नया हमने कितना इशू किया था, 84,500। सो इक्विटी विल बी व्हाट, 3,84,500। 30,000 शेयर्स पहले था एंड 8450 हमने बाद में किया होगा। रिजर्व सरप्लस में जो हमने सीआरआर, अब यहां पे देखें क्या जीआर होगा, कितना, 40, जो हमको यूज नहीं करना था, ये रहा। क्या पीएनएल होगा, नहीं, पीएनएल इज फुल्ली यूटिलाइज, राइट। ये 20, ये 40, 4.5 एंड 35.5। क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, बिल्कुल है, और नया अभी क्रिएट हुआ। दिस इज योर व्हाट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों की अमाउंट यहां पर रख देंगे। एज दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यू नीड नॉट टैली इट, राइट। इसका टोटल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ओपन छोड़ सकते हैं अपने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी, जय लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम केएम लिमिटेड। तो यहाँ पे जय लिमिटेड क्या है भाई, जय लिमिटेड है हमारा हायर परचेजर और केएम लिमिटेड हायर वेंडर। 8 मार्क के लिए हायर परचेज का क्वेश्चन है, और थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं, बट यू कैन से कि कैश मार्क्स हैं। कैश प्राइस 120, डाउन पेमेंट ऑन 1116, 32,433, 5 annual installments of rupees 23,100 and first to commence at the end of 12 months from the date of down payment. Okay, तो टोटल ये 23,100 into 5 plus down payment 32,433, if we make total it is more than the cash price of rupees 1,20,000. It means ये जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिए जा रहे हैं 23,100, इट इंक्लूड्स दी अक्रूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट अलग से ऐड नहीं करना है। फिर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ऑल्सो प्रिपेयर लेजर ऑफ केम लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ जय, मतलब हायर वेंडर अकाउंट बनाना पूछा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले कैश प्राइस 120 लेस डाउन पेमेंट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रिमेनिंग अमाउंट ऑन दैट इंटरेस्ट एट 10%, 8757, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। टोटल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे उसको ऐड कर दिया हमने। फिर टोटल अमाउंट लेस डाउन पेमेंट, दिस इज द क्लोजिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 7322, ये रहा 7322, राइट, 10% ऑफ दिस अमाउंट। टोटल इंस्टॉलमेंट पे किया आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये अमाउंट आ गया। उसका 10% थर्ड इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, वापस अमाउंट आउटस्टैंडिंग, उसका 10% हम कर देंगे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, फिर टोटल, और ये 2100 फिफ्थ का। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्ट हमने लिख दिए, 7322, 5745, राइट, 4009, yes, and 2100. Total interest to be paid is 27,933 over and above cash price. अब इसी का अकाउंट बना देते हैं हम। 1116 परचेस किया हमने, तो एंट्री क्या आएगी भाई तुम्हारी, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कैश प्राइस, हायर वेंडर टू बैंक सेम डे, डाउन पेमेंट, देन व्हाट, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर एंड इंस्टॉलमेंट, राइट। बैलेंस फाइंड कर देंगे, वो जो वहाँ पे टेबल था वही कॉपी पेस्ट करना है,
ओपनिंग बैलेंस 1117 और यहाँ पे क्या आएगा भाई, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर लेजर. 8 मार्क के लिए था, इजी क्वेश्चन एकदम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन. आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. 20 मार्क का क्वेश्चन दिया है, कोई भी 4 क्वेश्चन करने, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, राइट. नाउ एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. डेटा दिया हुआ है. किशोर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 19 विथ 15 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 75,000 यूनिट्स एट 20 ईच. तो इतना उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया आपके कैपिटल का. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March ही सोल्ड द एंटायर स्टॉक ऑफ फॉर ₹30. ओके, सो कैन आई से 75 इंटू 30 वो आपका सेल्स वैल्यू हो जाएगा और 75,000 इंटू 10 वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, मतलब ये 15 लाख रुपीज का कैपिटल आपको इंटैक्ट रखना है. ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन. जो प्रॉफिट हुआ वो विड्रॉ कर सकते हैं, राइट. 15 लाख रुपए का मैंने कैपिटल दिया और उसमें से प्रॉफिट हुआ 7.5, तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा. अब मुझे वही कैपिटल मेंटेन करना है, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस से उसको निकाल देंगे, राइट. सो इफ फाइनेंशियल कैपिटल इज टू बी मेंटेन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. है कुछ नहीं, यहाँ पे छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, राइट, कि फाइनेंशियल कैपिटल में क्या करते हैं हम लोग, और ओपनिंग इक्विटी जो आपका है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपको बोलना चाहिए कि कैपिटल, राइट, 15 लाख, और कैश जनरेटेड कितना, 22,50,000, 75,000 इंटू 30, और मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन बाय किशोर इज व्हाट, 7,50,000, जो मैंने बोला 75,000 इंटू 10, राइट. तो मतलब कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं था, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन कभी आए नहीं. दिस वॉज न्यू क्वेश्चन. बी, The following is the draft profit and loss account of Brown Limited for the year ended 31st March 20. ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एक सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप क्वेश्चन जो आता है हर बार, राइट, उस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट. अब यहाँ पे ये बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड हम नहीं लेते, राइट. मैनेजर रेम्यूनरेशन मतलब मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वो भी प्रिस्क्राइब नेट प्रॉफिट जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 198 की तरफ से सोच रहे हैं हम, वही, ठीक है. तो उसके हिसाब से जो आएगा वही. तो हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 198, जहां पे हम बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट लेंगे, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स नहीं लेंगे. तो ये प्रेजेंटेशन में हम देखें, यहाँ पे ये 2 लिया है हमने, बाकी और कुछ नहीं है आइटम. एक्सपेंस कौन से डिडक्टेबल है, तो अलाउएबल एक्सपेंस एडमिन, जी हाँ. एडवर्टीजमेंट, जी. कमीशन सेल्स कर सकते हैं, कर सकते हैं. डायरेक्टर फी कर सकते हैं, कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी कर सकते हैं. मैनेजर रेम्यूनरेशन कभी नहीं कर सकते. अरे उसका ही तो फाइंड करना है. यू कैन नॉट डिडक्ट इट. देन डेप्री ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यस, बट सब्जेक्ट टू व्हाट, द डेप्री शुड बी व्हाट, एज पर शेड्यूल 2, एंड व्हिच इज दे हैव गिवन एन एडजस्टमेंट, राइट. सो वी विल एडजस्ट दैट वन. Provision, GR, nothing. You can not deduct, right? So here admin, investment, advertisement, commission, director fee, interest on debenture, depre, everything. So this is the net profit of that 11% you can give as a remuneration, right? तो ये एक सीधा साधा क्वेश्चन था, राइट, आपका. उसके बाद सी, ब्रांच से पूछा गया था ये कि कोई रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट एंट्री आपको देनी है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. तो पहला, ब्रांच पेड 5,000 टू सैलरी ऑफ एचओ सुपरवाइजर. हेड ऑफिस का सुपरवाइजर है, उसका सैलरी कौन पे कर दिया भाई, ब्रांच पे कर दिया. तो ब्रांच को उतना पैसा एचओ से रिकवर करना चाहिए. तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, हेड ऑफिस टू कैश और बैंक, है ना. बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. गलती से उन लोगों ने खुद के एम्प्लॉय का सैलरी मतलब वो डेबिट कर दिया, राइट, समझ के. तो गलती से सैलरी डेबिट हो गया, कैश तो एनीवेज क्रेडिट हुआ ही हुआ. व्हाट आई वाज सपोज टू डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट. व्हाट आई हैव बाय मिस्टेक डेबिटेड, सैलरी, रिवर्स दैट. सो योर एंट्री विल बी हियर, हेड ऑफिस टू सैलरी, 5,000 rupees, right. Second one, asset purchased by branch. Who has purchased this? Branch has purchased. So obviously payment must have been made by branch, but the asset was retained in HO books. So if asset, or you can say this is the asset purchase where asset is recorded in HO book, in the name of HO it is taken, but payment was made by branch. Branch will take as if they have made payment to HO. HO to bank, head office to bank, 25,000 rupees. Okay. Then a remittance of 8,000 was sent by branch has not been received by HO.
Who cares? It's a reconciliation item, and receiving party will pass entry for reconciliation item. So HO will pass entry. So here, no entry in the books of branch. HO has collected 25 directly from the customer of branch but fails to give intimation to branch. Now, obviously, if HO has already collected, then branch debtor has to go down and we will debit what? HO, as if either we have to receive from HO or we have already paid to HO, right? HO to branch debtor और सीधा customer लिख सकते हैं HO to debtor. Clear? Then remittance of fund by HO to branch. HO has given money to branch. 5,000 not entered in branch book. Receiving party will pass entry, right? So not entered in the books of branch. Now here you can treat this as what? Either it's in remittance, I mean it's in transit, or it is already received, not recorded. Then either it is cash in transit or you can record as cash. Right? If we interpret like that, कि it's already received and you have omitted from books, then it should be cash to what? HO. Right? तो कैश टू एचओ हम एंट्री पास कर देंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर, हेड ऑफिस को हम क्रेडिट कर देंगे. सो छोटा सा 5 जर्नल एंट्री, एक मार्क का एक एंट्री का हम ले सकते हैं. फिर एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, लिस्ट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज लेवल 1 एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर ICAI. तो उसका यहाँ पे आपको थ्योरी आंसर दे दिया है, आप PDF से गो थ्रू कर सकते हो, राइट. सो वी आर नॉट वेस्टिंग मच टाइम इन डिस्कशन ऑफ दैट. फिर फॉलोइंग आइटम अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड. ये बोनस इश्यू का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 8 पेड अप. वेरी गुड. यहाँ पे पेड अप वैल्यू सिर्फ 8 है, ठीक है. कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग ₹45 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी. तो whether we can use it or not, yes, as per the guidelines, if it is realized in cash, to that extent you can use it, right. So this 45 we can use for the purpose of giving bonus. Revaluation, forget about it, we cannot use it. CRR, yes. Security premium, yes, if we are issuing fully paid up bonus shares. And this has, I mean, we will assume the security premium, right, is realized in cash, or here they have not given word what? Limited company. We can treat this as what? Star Limited is unlimited, unlisted company, right? Listed नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो we can treat this as unlisted, and for unlisted there is no restriction, correct? So either of the option, assumption you write it. Either you write assumption that security premium is realized in cash, so we are using it assuming this company is listed, or else it's unlisted and whether it is in cash or non in cash doesn't make any difference. GR है और PNL. On 1st April, company has made a final call on equity shares at 2 per share, okay, and the money was received by end of April, right? So 80,000 into 2. The first journal entry will be what? Equity final call to equity capital 160, and at the end bank. यहाँ पे date हमने नहीं लिखा because month end बोला है, you can write 30 April. Bank to equity share final call. Then what? On 1st June, company decided to issue bonus shares, bonus to equity shareholder at the rate of 2 shares for every 5 shares held, and it decided to use what? Minimum reduction in free reserve. Now how many shares are there? 80,000. 2 shares for every 5 shares held. So if you have 5 shares, 2 for 80,000, how much? So roughly 32,000 shares, right? So यहाँ पे 3,20,000 होगा, right? So entry will be what? First, now we have to make provision of 3,20,000 rupees. From where we can use it? First, we give priority to what? CRR, then securities premium, right? First CRR, then securities premium. After that, we'll use capital reserve, then GR, and if required, PNL. So CRR, security premium, right? Then capital reserve, and balance in GR, right? Here for that note 1, we should write, next entry is not printed, we have to write it, that is for utilization of bonus. It's deleted, I guess. So bonus to shareholders, I'll write it for you guys, to equity share capital 3,20,000, right? And this note 1, you can write that we have assumed that Star Limited security premium is realized in cash and it is listed company. Or you can write
we have assumed, in the absence of information, we are assuming Star Limited is unlisted company and there is no restriction of cash or credit, I mean cash or non-cash security premium we can utilize. Correct? So that note you have to write. I'll write it for you guys here. The last part is deleted by mistake over here. Right? So I hope all on average I can say the intermediate paper was एवरेज, अबव एवरेज बोल सो आप, बट लेंदी था, राइट? और इट्स डिफिकल्ट, अगर आप कहीं पे एक क्वेश्चन में स्टक हो गए तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट फॉर 100 मार्क, राइट? आई होप you have understood everything and best of luck for the next exam. Happy learning. Thank you.